Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah. Hallelujah. रियांडा लाब्रा. Come on, चल अपनी आवाजों को उठाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Come on. Come on, church. Come on, church. आप अलौकिक हैं. आप कमजोर नहीं हैं. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य जीवन के लिए बुलाया है. न हारने वाला जीवन, न कमजोर होने वाला जीवन, एक जयवंत जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको बुलाया है. वो अभिषेक उसका आपके ऊपर में किया गया है. वो अभिषेक सब बातें आपको सिखाएगा. ले ब्रोंथोलो ब्रोडोरा मामासिया रिबाला बाबा बाबा बारिएडे लोग्रोडो जोडोलोबो रेखेंटेले ब्रेंडेले ब्रेडेनियाना मोजला बाबा बारा बाबा ला बारियाना ला 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 होली गॉड और ये बे 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 शेखे रेडे. ओ वो आ रहा है, वो आ रहा है. His name is Jesus. His name is Holy Spirit. His name is Jehovah. He is here. He is here. He is here. He is almighty. He is supernatural. He is here right now. Receive the power of God. Receive the power wind. Receive the mighty fire. Re be 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 be. Robo lobo rono mama mama sia. Fire. Oh ho 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 ho. Fire. Re ba 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 ba. Come on, ले लो. और फायर. और more और पीछे आ रहा है, बीच में आ रहा है, फ्रंट में. और Come on, बजा. और मोजोडिया रिकांडला रिबे बे 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 बे. वो यही है. री 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 बा 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 बा. ओरी बा 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 ला बा रा बा ना मामा सिखा. ओ रोबो फायर. फायर. होली गोस्ट फायर. होली गोस्ट. Come on, come on, come on. Rebo londo no masika. Come on. Holy Ghost. Fire, fire, fire. Riba ba 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 ba. O riba banda prada nama sekhe rekhe dele. Come on, प्रार्थना करें. La branda sika. O riba dia laba. O riba dia antalabra. O le brede sekhe. 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 Fire. O roba ba 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 ba. Oh yeah, mama sekhe. Ribara bara 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 bara. Come on, church, pray in tongues. Come on, church, pray in tongues. Pray in tongues. Pray in tongues. Pray in tongues. Oh rebe sekhe. Come on. Ho ho ho. Riba ba 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 la ba 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 na mama sekhe. Oh robon tolo brodo na mama shia la la brada sika. पवित्र आत्मा छू ले. पवित्र आत्मा छू रहा है. हर एक को छू रहा है. हर एक को भर रहा है. सर से लेकर पांव तक अभिषेक. सर से लेकर पांव तक अभिषेक. चेंज योर मिनिस्ट्री. चेंज योर फैमिली. बी चेंज. बी चेंज. बी चेंज. बी चेंज. बीमार अब बीमार नहीं रहेगा. कमजोर अब कमजोर नहीं रहेगा. पवित्र आत्मा उभार रहा है. हे शूरवीर शूरमा मत डर. The Lord Jehovah is with you. वो आपके साथ है. रिबला बरा 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 बरा. बिरी 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 बिरी. Holy Ghost. आओ. आ जाओ. आओ 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 आओ. रिबा बा बा बा. Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. You are almighty. You are powerful. You are glorious.
You are beautiful. You are magnificent, omnipotent, omnipresence, Father. Oh, Holy Spirit, you are awesome God. You are holy God. Oh, you are mighty God. Holy Spirit. Holy Spirit, Riyama Mandalabra. Oriama Mama Seke. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. आ जाओ और फायर 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 री बाबा 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 ले भरो हो सब भूल जाइए प्रेंट एंड सब कुछ भूल जाओ कौन है आपके पास में कहां से आते हैं आप फॉरगेट योर सेल्फ फॉरगेट योर सेल्फ फॉरगेट योर सेल्फ अपने आप को भूल जाएं जस्ट रिमेंबर जीसस जस्ट रिमेंबर होली स्पिरिट जस्ट रिमेंबर अनॉइंटिंग जस्ट रिमेंबर द पावर ऑफ गॉड जस्ट रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड जस्ट रिमेंबर रिबा Come on, come on, come on. एक बार और आजा 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 हाँ come on, come on. आजा आजा अरे बा शिखा come on और तेज come on, come on. Fire, 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 fire. Holy Ghost! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Fire! Fire! Robo Shoko! Fire! Fire! Name of Jesus! Fire! He's here! Fire! 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 Receive! Fire! Name of Jesus Christ! Fire! Labranta labrana namasika. Come on! Come on! Come on, come on! Fire! Fire! Ori baba bashi anda labrana nama. Come on, come on, come on, come on! Feel the power of God! Feel the power of God! Feel, 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 feel the power of God! Ori baba shika. Oh, mama! Fire! 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 भरो 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 और ओरी बाबा बाबा फायर 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 री बाबा 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 लाब्रांटा लाब्रा सोलो ब्रोडो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो फायर He is here. Fire! Come on! ले लो भाइयों come on बहनों come on भाइयों बहनों come on और तेज और लो रीरा बाबा 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 और लो फायर 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 और आग और कम ऑन बाबा रबर 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 लो 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 Jesus
Come on, lo. Riba ba shaka. Rikhandala brada nama. Pick up. उठा लो. Come on. Come on. Receive the power of God. Just receive the power of God. Just receive. Oh, receive. Oh. Jesus. Come on, church. He is here. Receive the mighty anointing. Today is your day. I speak anointing in your life. I speak anointing in your ministry. I speak anointing in your family. I believe in anointing. I believe in God. I believe in miracles. Lebron Zlobro. Come on. आग के समान. He is mighty wind. Jesus. Come on, शायद अपने दोनों हाथ तक उठाएं. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपस्थिति यहां पर है. Oh Jesus. Just receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे मेरे भाई और बहनों, आप बुलाए गए हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे जाने के लिए. हारा हुआ कमजोर जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं. जैसे आपके लोग, आपके आसपास के आपके मित्र रिश्तेदार कमजोर हरा हुआ जीवन जी रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो प्रभु ने आपको इसलिए नहीं बुलाया. यीशु ने इसलिए बुलाया कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं. आप जीवन पाएंगे, बहुत आयत का जीवन पाएंगे. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. रेखान चाला ब्राडा सीखा लोडोरो सोथोरोबा रगड़ाना रिये बोजा लेख रेंडे जेगे लोड्रोडोनो माडाला ग्रीडी बाबा ना मासिया रोडोनो मा. प्रभु कहता अपना मुंह खोल में भरूंगा आज. Whatever you ask, He will give you. Whatever you ask, our God is will. मेरे परमेश्वर की इच्छा है वो आपको राज्य दे. His kingdom, उसका राज्य is yours. अब वो तुम्हारा है. और यदि राज्य तुम्हारा है तो उसकी सामर्थ भी तुम्हारी. रिसीव. वेलकम. स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच सामर्थ से तू भर दे. पूरा कब्जा स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे सामर्थ से पूरा कब्जा. तू जीवन का जल है, सोता तू जीवन का
शांतिदायक आत्मा, पूरा हो शांतिदायक, पूरा कब्जा, शांतिदायक आत्मा पूरा। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में, आपने हमें छुआ है इस मीटिंग के आरंभ में है प्रभु। मेरी प्रार्थना है वो धन्य स्पर्श प्रभु इस मीटिंग में लगातार और पिता जीवन के अंत तक लगातार बना रहे प्रभु। आपकी उपस्थिति, केवल आपकी उपस्थिति हमें पूर्ण करती है पिता। मेरी प्रार्थना है हर एक प्रार्थना का विषय जो प्रभु आपके बेटे बेटियां यहां लेकर आए हैं, उसका उत्तर हाँ और आमीन में होने पाए। तूने कहा आपसे जो प्रार्थना इस भवन से की जाएगी उस पर आपकी आंखें लगी रहेगी और कान खुले रहेंगे। प्रभु अपने वचन के अनुसार काम करें। बीमार फिर बीमार वापस ना जाए, दुखियारा फिर दुखी में वापस ना जाए, कमजोर सामर्थ्य से भरकर जाए, अभिषेक से भरकर जाए। हर एक पर तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे आज। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। इस पूरी मीटिंग पर आप नियंत्रण है। मैं हर एक चर्च विरोधी, प्रार्थनावादी, मसीह विरोधी आत्मा को बाइंड करता हूं। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं यीशु के नाम दूर हो जाए। पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ्य प्रकट हो। हम सारी बातों में केवल और केवल आपको महिमा देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। कलीसिया चिल्लाए आमीन, हालेलुया। कई आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, न हारने वाला दिन। आज मेरा दिन है, आज मेरी जय का दिन है। आज मैं जयवंत होऊंगा क्योंकि जयवंत यीशु मेरे अंदर है। कहे जैसा वचन कहता है मैं वैसा ही हूं, जैसा वचन में लिखा है मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे पास है। जैसा वचन कहता है मैं कर सकता हूं, वो सब कुछ मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित हूं। कहे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आज आपका वचन यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोनों ताली बजाकर अपने स्थान को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। हालेलुया, सब सही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। हालेलुया। ये एटमॉस्फेयर एक खास बात है कि मैं आप लोगों को ठीक से देख नहीं पा रहा, लेकिन आप सब देख पा रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरे भाई और बहनों कि आपका और मेरा ध्यान भी उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की ओर लगा रहे प्रियो, संसार से हटकर। हालेलुया। जब यहाँ पर आराधना चल रही थी, जब पवित्र आत्मा अपने कार्य को प्रकट कर रहा था, परमेश्वर ने ये बात मुझसे कही कि जब अभिषेक आज आपकी जिंदगी में आएगा, आप सेम वापस नहीं जाएंगे, आप सेम नहीं जाएंगे। शायद आप में से बहुत सारे लोग दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में यहाँ पर आए हैं परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर आज ये बात वायदा कर रहा है आपसे कि आप सेम वापस नहीं जाएंगे, आप परिवर्तित होकर और बदले हुए व्यक्ति बनकर। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के धन्य स्पर्श को बहुत सारे भाइयों बहनों ने यहाँ पर प्राप्त किया है और वो लगातार इस आराधना के सेशन में, इस वचन के सेशन में लगातार वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरते चले जाएंगे। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा काम हमारी जिंदगी में शुरू होता है वो है पवित्र आत्मा से निरंतर भरते चले जाना। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य है। केवल उद्धार तक हम सीमित न रहें। आप किसी भी परिस्थिति में, शायद आप टीचर हो, शायद आप नर्स हो, शायद आप बड़े पोस्ट पर हो, लेकिन उस पोस्ट में भी परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन बिताएं। परमेश्वर ने आपको और मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन देने के लिए बुलाया है। एक ऐसा जीवन मेरे भाई और बहनों जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है,
जब एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन होता है मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जिंदगी में गलती नहीं करेगा, वो गिरेगा नहीं। यदि वो गिर भी जाता है तो परमेश्वर फिर से उठाकर खड़ा करेगा और आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा से भरा जाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यीशु ने स्वयं कहा, जब तक आत्मा तुम पर न आए यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। इसका मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा से भरा जाना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना कितना इंपॉर्टेंट है। आज मेरे भाई और बहनों, आपको अपने घर के अंदर में, शायद वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हो, हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है। शायद आपका बिजनेस में लॉस हो रहा हो, यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, मैं आपसे कहना चाहता, पवित्र आत्मा हर समय आपको अगुवाई करेगा, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, और आप एक विजयी जीवन जिएंगे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी उम्र के 30 सालों तक किसी भी प्रकार की सेवकाई नहीं किया, लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पवित्र आत्मा आए, उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई। हालेलुया। हमारी जिंदगी की सेवकाई भी जब आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए जाते हैं, आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन से आपकी और मेरी सेवकाई शुरू हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी चर्चा सब दूर फैल जाए, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आपको जाने, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। मैं प्रभु के एक दास का एक मैसेज सुन रहा था, कुछ समय पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की एक बात जो उन्होंने कही, सचमुच उस बात से मैं 2-3 दिन से उस बात पर मनन कर रहा हूं, जो बात उन्होंने कही थी। उसने कहा, बहुत सारे प्रभु के लोग, बहुत सारे विश्वासी क्यों दुर्घटनाओं से और मृत्यु से अचानक मर जाते हैं। एक सोचने वाली बात है। हाँ, दिस इज द गॉड्स विल। यहाँ प्रभु की इच्छा के बगैर कोई ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन कई बार प्रभु को डन करना पड़ता है कि भैया आ जा, कुछ नहीं बचा तेरे पास। वो कह रहे थे कि क्यों बहुत सारे लोग हताश के कारण, निराश के कारण, कमजोरी के कारण, बीमारियों के कारण, तकलीफों के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं समय से पहले। इसका मतलब वो नहीं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, यदि वो यीशु में भरोसा करते स्वर्ग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए और सेवा को रखा था स्वर्ग के ऊपर। हालेलुया। लिसन केयरफुली, वो क्या समझा रहे थे? वो ये बात को समझा रहे थे कि यदि आप और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे नहीं गए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीमारियां अटैक करेगी, समस्या अटैक करेगी, कैंसर आएगा, टीबी आएगी, ये रोग आएंगे, ये महामारियां जो चल रही है वो आएगी और वो आपको नष्ट करेगी। लेकिन एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, वो इन सारी बीमारी के ऊपर में जयवंत होता है। कम ऑन चर्च। हम हमेशा कहते हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्या ऐसा कहने से बीमारी नहीं आती क्या? लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हैं और आप कहते हैं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, बीमारी आपको सो दूर होने वाली आपसे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्यों यीशु ने अपने चेलों का रुकना, जब तक आत्मा तुम पर न आए, सेवा के लिए मत जाना, शैतान से लड़ने के लिए मत जाना। क्यों यीशु चाहता था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से शैतान से न लड़े, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से लड़े। आज आप और मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते, हम अपनी सामर्थ्य से अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते, नहीं अपनी सामर्थ्य से हम अपनी जॉब में बहुत बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वहां पर काम करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर पल, हर समय और हर कदम पर आप और मैं अलौकिक रीति से आशीषित होंगे और वहां फलवंत होंगे। एक वचन मेरे साथ निकाल, लूका 6 सुसमाचार जल्दी से, और हम आगे और बढ़ने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और उसके अभिषेक में।
लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, लूक चैप्टर नंबर 4 उसका 14, लूक 4 उसका 14। थैंक यू होली स्पिरिट। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। फिर से फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्या लिखा? यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ कहां लौटा? गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही पैदा हुआ था। आप लोग जानते हैं मरियम की गर्भ के अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह आए थे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आए थे। एक पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, क्यों उसे पवित्र आत्मा के उस अभिषेक की जरूरत थी? एक मनुष्य होने के नाते हमें भी उसी प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ के अभिषेक की जरूरत है। लिखा है आफ्टर बैप्टिज्म यीशु 40 दिन के लिए सेपरेट हुआ, शैतान से उसकी परीक्षा हुई, और लिखा है वहां पर मेरे भाई और बहनों उसके 14 में कि फिर एंड ही बिगन, हाँ पढ़िए, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा एंड जीसस रिटर्न टू गैलिली इन द पावर ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की सामर्थ से वो रिटर्न आया। ऐसा लिखा यीशु शरीर की सामर्थ से रिटर्न आया। हालेलुया। कैसे आया यीशु मसीह? बोलो आत्मा की सामर्थ से। प्रियो याद रखे, आप कुछ भी करते हो बहनों, आप शायद घर में रोटी बनाने वाली हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और मुझको आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होना मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रेरितों के काम में 7 लोग खाना बनाने वाले थे। कितने? 7 लोगों को परमेश्वर ने चुना जो खिलाने पिलाने की सेवकाई करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन उस खिलाने और पिलाने की सेवकाई में भी वे 7 जो लोग थे ना, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण व्यक्ति थे। हम यहीं पर रहेंगे, प्रेरित काम भी साथ साथ निकाल लीजिए आप। मैं आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके अभिषेक की ओर लेकर जाना चाहता हूं, ताकि आज आप और मैं 7 नंबर का चैप्टर नंबर 6 जल्दी से निकालें। 6, हाँ, और दूसरे पद से। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर हाँ, खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। ठीक है। इसलिए हे भाइयों, अपने में 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण। सब बोलो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में चाहे वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति हो, या बर्तन साफ करने वाला व्यक्ति हो, या पोछा लगाने वाला व्यक्ति हो, या गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो, या गाड़ी को साफ करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो पवित्र आत्मा से भरा जाए। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। प्रारंभिक कलीसियाओं में ये रूल था। प्रारंभिक कलीसियाओं में ये रूल था कि सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चाहिए। हम तो झाड़ू लगाते हैं साफ, कोई दिक्कत नहीं, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। सर हम तो बर्तन साफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। सर हम तो ड्राइविंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या होना चाहिए? लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, तो ये बात कहां पहुंच गई? ये केवल पास्टर और प्रचारकों का काम है। क्या है? तो पास्टरों का काम है, प्रचारकों का काम है, तो एपोस्टल प्रोफेट्स का काम है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हम तो बस जाना है, संडे चर्च जाना है और वापस आ जाना है। नो, मेरी प्रार्थना इस चेयर पे बैठने वाला हर एक व्यक्ति और इस भवन में कदम रखने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। क्यों हर संडे परमेश्वर मुझे अलाउ करता है, मुझे फोर्स करता है कि मैं लोगों के सिर पर हाथ रखूं, उनके लिए प्रेयर करूं। और आप देखते हो यहां कितनी
आलोक की रीति से परमेश्वर लोगों को छूता है। हमें से बहुत सारे लोग अपने पांव पर नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग अचानक उनके अन्य भाषा का लेवल बढ़ जाता है, अचानक से उनकी बॉडी से दर्द निकल जाता है, चिंताएं निकल जाती है, जो भारीपन लेकर आए थे, निराशा लेकर आए, उनके जीवन से चला जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। कम ऑन, हालेलुया। बोलो, क्यों परमेश्वर चाहता है? बोलिए, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। बोले, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आजादी में चलता है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने घर के अंदर में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर में लड़ाई झगड़ा, नशा और चुगलियां और नुकसान, ये सब बंद हो जाने वाले हैं। कम ऑन। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम खुद आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाकर आत्मा से परिपूर्ण होने की चाह नहीं करते। हम कहते हैं जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ने वाली है तो हम क्या करेंगे? कॉल सेंटर्स हमारे पास में, पास्टर्स लोग हमारे पास में हैं और प्रभु के लोग हैं, हम कॉल करेंगे, प्रार्थना करा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस बात के ऊपर में निर्भर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें केवल उस बात के ऊपर निर्भर नहीं होना है। यहां पर कुर्सी पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चाहिए। कम ऑन। यदि आप नर्स हैं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी ना, वहां चमत्कार होने लगेंगे। यदि आप टीचर हैं, जिस क्लासरूम में आप जाएंगी, वहां के बच्चे परिवर्तित हो जाएंगे। आप जिस ऑफिस में हैं, वहां के लोग परिवर्तित हो जाएंगे। फिर यीशु एंड जीसस रिटर्न फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हाँ, लिखा है, क्या लिखा है? चलिए इसी पे आ जाइए। प्रेरितों का काम 6 अध्याय और उसके 7 पद को। 7 पद। हाँ, परमेश्वर का वचन फैलता गया। 6 और उसका 3 पद से। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हाँ, अपने में सात सुना पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, सुनिए, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पे ठहरा दें। क्या काम पे ठहरा दें? क्या काम था बताया वहां पर? खाना बनाने का। क्या काम था? क्या काम पे ठहरा दे? अरे अपोस्टल जी, हमने तो सोचा था तुमको कलीसिया में ये बनाओगे, कलीसिया में वो बनाओगे, कलीसिया में हमको तो लगा अलग चर्च दे रहे हो तुम हमको तो लगा था हम ये करेंगे और क्या खाना बनाएंगे? अपोस्टल जी को बोलते हैं खाना वाना हम घर पे ही बनाते, इधर नहीं बनाएंगे। हालेलुया, कम ऑन चर्च से हालेलुया। खाना बनाने के लिए बोल दिया। कलीसिया को यह मौका दिया गया कि अपने लिए 7 आत्मा से परिपूर्ण लोगों को, यदि मैं बोल दूं यहां पर मैं देखो यार जो अच्छे अच्छे अन्य भाषा बोलते और अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन 7 लोगों को छाट लो। क्यों? खाना बनाने के लिए। कलीसिया सोचेगी अपोस्टल हमने तो सोचा ये हम हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और जबरदस्त काम करेंगे, और क्या काम दे दिया हम आपने इन्हें? हालेलुया। जो खाना बना सकता है ना, वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। और 7 लोगों को जो आत्मा से परिपूर्ण थे। अब सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देने की बात है। उन्होंने पूरी कलीसिया पर नजर दौड़ाई होगी और पूछा होगा कि आज प्रेरितों ने 7 लोगों को चुनने का मौका दिया है, अभी बात नहीं है कि खाना बनाने के लिए। तो उन्हें ढूंढा और यार ये सबसे ज्यादा आत्मा से भरे हुए लोग हैं। उन 7 लोगों को अलग किया। उनको क्या जिम्मेदारी दी? क्या करना है? बोलो, खिलाने और पिलाने की सेवकाई। खाना भी बनाना है, पानी भी पिलाना है, बर्तन भी। समझ में आ रहा है? कितने लोग खाना बनाने के बाद बर्तन धोते हैं? है ना, बहनें धोती हो ना? धोते हैं ना? फिर वो खाना बनाएंगे तो बर्तन पड़ोसी तो धोएगा नहीं। कम ऑन चर्च से हालेलुया। खाना बनाने की सेवकाई में भी
परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण लोगों को ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है ये सारी जिंदगी खाना बनाने वाले नहीं है। थोड़े दिन खाना बनाएंगे, उसके बाद ये मिरेकल करने वाले लोग हैं। कम ऑन, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। यहां पर 7 सुनाम व्यक्तियों को चुना गया खिलाने और पिलाने की सेवकाई के ऊपर में। उसमें से 2 लोग यदि आप बाहर निकालें हम उन लोगों को, उनका एक का नाम था फिलिपुस और दूसरे का नाम था स्तिफनुस। और दोनों के बारे में बाइबल में मेंशन है कि परमेश्वर ने अलौकिक रीति से इस्तेमाल किया। कम ऑन चर्च, बोलो एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की निशानी होती है। बोले जोर से, वो हर काम के लिए तैयार होता है। लोग सोच रहे थे कि ये केवल अनॉइंटिंग ही चिल्लाएंगे कि खाना वाना भी बना सकते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ये तो केवल एक परख थी, असली काम दूसरा था। ये 7 लोगों को अलग कर दिया गया और खिलाने पिलाने की सेवकाई में इन्हें डाल दिया गया। हालेलुया। और जैसे खिलाने पिलाने की सेवकाई शुरू हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 8 पद को देखिए क्या लिखा है। 8 स्तिफनुस 8 6 का 8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर हाँ क्या कर रहा था? वो खाने के काम के बाद जब समय मिलता था वो प्रभु की सामर्थ्य रूप से सेवकाई कर रहा था। और प्रभु इस रीति से स्तिफनुस को इस्तेमाल कर रहे थे कि वो अद्भुत रीति से मिरेकल्स कर रहा था। वहां पर परमेश्वर उसके द्वारा अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़ों को चला था, दुष्टात्माएं चीख चीख कर निकलती हुई भाग रही थी। वो इसलिए ऐसा था मेरे भाई और बहनों कि आने वाले समय में जब कलीसिया बहुत मॉडिफाई हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो इस बात को समझे कि एक खाना बनाने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो पवित्र आत्मा से भरा जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टम ऑपरेट करने वाला, एक कीबोर्ड ऑपरेट करने वाला, एक ड्रम को ऑपरेट करने वाला, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो पवित्र आत्मा से। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया चाहे आप कुछ भी करते हो, आपके लिए और मेरे लिए मस्ट है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, नॉट अ सिंगल डे, नॉट अ संडे, नॉट ओनली द संडे, एवरी डे फिल विद द पावर एंड होली स्पिरिट। हर दिन आपके लिए और मेरे लिए नेसेसरी है कि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे जाएं। आप और मैं लगातार 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 पवित्र आत्मा से भरे जाएं। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। और क्या खास बात हुई? लूका उसके 4 उसके 14 पद में लिखा है। मैं आपको यीशु मसीह की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ, क्या हो गई? लोग चाहते हैं उनकी चर्चा सारे देश में फैल जाए। कम ऑन चर्च, कम ऑन, सबकी इच्छा है। बोलो सबकी इच्छा है। बोलो रहस्य क्या है? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। सब पढ़ो मेरे साथ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, बोलो भरा हुआ, गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के
सारे देश में फैल गई। बोलो बोलो, ऐसा बोलो, बोलो यदि तुम चाहते हो तुम्हारी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल जाए, पवित्र आत्मा से भर जाओ। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा होना बहुत जरूरी मेरे भाई और बहनों। आज कलीसिया को फिर से जरूरत है कि हम प्रेरितों के काम पर लौट कर आ जाएं। कलीसिया बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है आजकल। यदि आप किसी का फोन नहीं उठाओगे तो कहीं और जाके प्रार्थना करा लेगा वो। आप उसको डांट दोगे तो किसी और चर्च में चला जाएगा। ओह जीसस। चर्च बदलने से, प्रेयर टावर बदलने से या संस्थाएं बदलने से फायदा नहीं है मेरे भाई और बहनों। अपना मन बदलें और पवित्र आत्मा से भर जाएं। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु ने यह वायदा किया था, यीशु ने उस पावर को एक्सपीरियंस किया, चेलों ने बार बार पूछा होगा कि प्रभु हमें तेरे जैसा जीना है, हमें तेरे जैसा करना है, हमें तेरे जैसा जीना है, हमें तेरे जैसा करना है। जिस प्रकार हम अपने स्पिरिचुअल फादर को, मेंटर को जो काम करता हुआ देखते हैं, हमारे अंदर इच्छा होती है कि आने वाले समय में हम ऐसा करें। तो वहां पर चेलों के अंदर भी यह इच्छा थी कि वो यीशु को जो करता हुआ देख रहे थे वो करें। वो यीशु को जो मिरेकल करता हुआ देख रहे थे, वो सोचे प्रभु आप हमारे द्वारा, यीशु मसीह आप जाएंगे तेरे राज्य में तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। हालेलुया। कितनों के अंदर ये इच्छा होती है? कम ऑन, होती है आपके अंदर में, मेरे अंदर में होती है, हर दिन, हर दिन होती है। प्रियो, जब वो यीशु से बात करते होंगे, यीशु ने उन्हें कहा होगा आत्मा से भरना है, आत्मा से भरना है। और 3.5 साल तक यीशु ने सिखाया। सब बोलो, 3.5 साल तक यीशु ने सिखाया। फिर यीशु जाने वाले हैं। यीशु ने कहा सब बातें ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है, तब तक मत निकलना जब तक कि आत्मा के सामर्थ्य से ना भरे जाए। क्या बोला? बोला तब तक मत निकलना जब तक आत्मा के सामर्थ्य से ना भरे जाए। क्योंकि उनको यह बात पता थी कि ये बिना सामर्थ्य से भरे हुए अब मेरी नकल करने जाएंगे ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये होता ना, प्रार्थना कुछ करी नहीं और लगे हैं निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कम ऑन चर्च, आप लोग मेरे साथ हैं। एक बहुत बड़े प्रभु के सामर्थी दास थे, बहुत ज्यादा अभिषिक्त। उनकी सभाएं चल रही थी और परमेश्वर उनको अलौकिक रूप से इस्तेमाल किया। सभाओं के बाद जब वो अपने जगह पर पहुंचे, एक जवान उस सभा में अटेंड की थी, वो उनके पास आकर बोला कि जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, वो मुझे चाहिए। कैसे होगा? अपने प्रार्थना के कमरे में गए, एक टाट उठा सब बोले कर लाए। टाट समझते से पांव पोसते हम लोग, बोरा टाट। उसमें 2 बड़े बड़े होल थे। क्या थे? बोले देख रहे हो? बोले हाँ। क्या है इसमें? बोले 2 बड़े होल। बोले ये होल अचानक नहीं हुए, ये मेरे घुटने टेकने के कारण हुए हैं। कैसे हुए होल? ये देख रहा ना, ये लाइसेंस है मेरा, तू भी कर, तू भी पाएगा। कम ऑन। परमेश्वर चाहता है आज आपको आत्मा के नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए, अभिषेक के नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए। यीशु की इच्छा थी कि उसका हर एक चेला और उसका हर एक विश्वासी बड़े बड़े काम करे। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 12 पद को देखिए क्या लिखा। जल्दी से हम बहुत सारी बातों को देखेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे। समय कम है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं हम लोग सही समय पर प्रभु की महिमा को देखने वाले हैं। कम ऑन। क्या? कम ऑन, पीछे वाली आवाज आ रही है? वाओ, दैट्स गुड। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हाँ सब बोलो, ये काम जो मैं करता हूं। यीशु क्या काम करता है? बोलो, यीशु क्या काम किया? गूंगों की जुबान,
बहरों के कान खोले, लंगड़े चलने लगे, पैरालिसिस वाले ठीक हो गए, पानी दाखरस में बदल गया, 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों ने खाया। बोलो 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों ने खाया, हजारों ने खाया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर भी जिंदा हो गया। बोलो अलौकिक काम हुए। मछली ने मुंह से सिक्का निकाल दिया। मछली ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? हालेलुया। बोलो अलौकिक काम हुए। पर प्रभु कहता है तुम इससे भी बड़े काम करोगे। कम ऑन। बोलो जब ये बात, कम ऑन आवाज ऊंची करो, जब ये बात, एक बार और, चेलों ने सुनी, प्रभु कैसे होगा? हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। बोले एक काम करना है, पवित्र आत्मा से भरे जाओ। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा जाना ये एक दिन का काम नहीं है। जिस प्रकार हम अपनी शरीर को सामर्थ देने के लिए हर दिन खाते हैं, आत्मा को सामर्थ से भरने के लिए भी आपको और मुझको आत्मा से हर दिन खाना है। कम ऑन। जब आप हर दिन खाओगे आत्मा में, आप हर दिन आत्मा में बढ़ते चले जाओगे। जब हर दिन आप प्रार्थना में समय बिताओगे, हर दिन आप आराधना में समय बिताओगे, हर दिन आप वचन के साथ समय बिताओगे, आप आत्मा में बढ़ते 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 चले जाओगे। प्रियो, समय समय पर हमें अपने आत्मिक चेकअप की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार समय समय पर हम अपने शारीरिक चेकअप के लिए जाते हैं। इंडिया में बहुत कम होता है, लेकिन यदि आप एब्रोड साइड देखें, यूके, यूएसए में और अदर कंट्रीज में, वहां लोग डॉक्टर से मिलने भी जाते हैं। हम लोग जब बीमार होते तभी जाते हैं। वहां समय समय पर उनके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलने जाते हैं, हर महीने 2 महीने के अंदर में, अपने रेगुलर चेकअप के लिए। कैसे चेकअप के लिए? यहां तो जब तक प्राण ना छूटे डॉक्टर का मुंह नहीं देखेंगे। हालेलुया। डॉक्टर साहब अब तो बस प्राण छूटने वाले हैं, डॉक्टर वाले अब आया है। वो समय समय पर जाते हैं अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए। हालेलुया। मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, उसके अंतर्गत उनका पेमेंट होता है, उनके सैलरी से डिटेक्ट होता है, इसलिए वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा तो देना ही नहीं है। इंश्योरेंस वाले देंगे तो उनकी पॉलिसीज रहती है, ये कंपनी उनको प्रोवाइड करती है मेडिक्लेम्स वगैरह, जिससे वो महीने 2 महीने के अंदर में जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं ताकि शरीर को जांचें। क्या हम अपने आत्मिक चेकअप के लिए टाइम टू टाइम ध्यान देते हैं? क्या हमें आत्मिक चेकअप को टाइम टू टाइम ध्यान देना है कि मेरा अभी आत्मिक जीवन किस लेवल पर चल रहा है, मेरा शारीरिक जीवन किस लेवल पर चल रहा है, मेरा आत्मिक लेवल किस जीवन पर चल रहा है? हमको उस लेवल को देखना है और जांचना है। यीशु की बात को याद करना है। तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी से बड़े काम चालू हो, तुम्हें आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। और प्रिय, उसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो आपके और मेरे जीवन में अपनी आत्मा को ढेलेगा। वो आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर पिता का आत्मा है, जो ओलों की वर्षा, उजाड़ने वाली आंधी और बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। यशायाह नबी की किताब उसका 28 अध्याय उसके 2 पद को देखिए क्या लिखा है। यशायाह 28 का 2। यशायाह 28 वर्स 2। नहीं, यशायाह उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। His name is Holy Spirit। प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। और पता है वो बलवंत और सामर्थी अब कहां रहता है? आपके और मेरे अंदर। कम ऑन। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा में जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत सामर्थी होता है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। प्रभु का आत्मा मुझे ये कहा कि लोगों को कह देना आज
तुम्हारे हालात पहले से नहीं होंगे, तुम बहुत सामर्थ्य लोग हो। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, कोई भी कमजोर नहीं है, आप सामर्थ्य हैं। रोना धोना बंद कीजिए। यदि आप हमेशा रोते धोते रहेंगे, शैतान आपका ध्यान हमेशा रोने पर लगाएगा। रो 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 रो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हे शियोन की बेटी, उठ जा, अपने ऊपर से राख को दूर कर। परमेश्वर चाहता है हम अपने ऊपर से राख को दूर करें। रात को मैं हिजकिया के समय की बात पढ़ रहा था। हिजकिया के राज्य में अश्शूर के राजा ने हिजकिया के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने से पहले उसने चारों साइड से उसको घेर लिया, और उसके मंत्री रबशाके को भेजा कि जाकर हिजकिया से बात कर कि तू मरना चाहता है या तू कर देना चाहता है। जब इसने हिजकिया ने अपना सारा सोना, मंदिर के आसपास का सोना, शहरपना का सोना, जो कुछ था, और सोने को खरोच खरोच के जो दीवालों में था, सब कुछ खरोच खरोच के, कि सोना बिल्कुल उनके पास नहीं था, सब उठाकर अश्शूर के राजा को दे दिया। जब अश्शूर के राजा ने देखा इतना सा सोना, उसने अपने मंत्री रबशाके को भेजा कि जा और उनको बोल के आ कि तूने हमारे साथ धोखा किया है, अब तैयार रहे गुलामी के लिए। हमारी सेना इतनी बड़ी और विशाल है कि यदि वो यर्दन पर पांव लगाएगी ना, तो यर्दन सूख जाएगा, और तीर इतने आएंगे कि छांव हो जाएगी। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। रबशाके यरूशलेम की चौक पर खड़ा होकर चिल्लाकर कहता है, अश्शूरी लोग अरामी भाषा बोलते थे, लेकिन जो राजदूत रबशाके को भेजा गया वो हिब्रू भाषा में बात कर रहा था, जो इजराइल की भाषा थी, जो यहूदियों की भाषा थी। उन 3 मंत्रियों ने बोला कि तुम लोग गुलामी में चला जाओगे, तुम जिस परमेश्वर में भरोसा करते वो भी तुमको नहीं बचा सकता। क्या मिस्रियों के राजा ने उनको बचाया? क्या दूसरे राजाओं ने उनको बचाया? क्या उनके देवताओं ने उनको बचाया? तो कौन सा तुम्हारा यहोवा देवता है जो तुमको बचा लेगा? कौन सा तुम्हारा परमेश्वर जो हमसे बचा सकता है? हिजकिया तुमको छूटी दिलासा न दे कि परमेश्वर तुमको बचाएगा, कोई भी तुमको हमारे हाथ से नहीं बचा सकता। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं हैरान था कि वो जीवते परमेश्वर की निंदा कर रहा था। वहां के जो 3 मंत्री, हिजकिया के 3 मंत्रियों ने कहा कि प्लीज तू हमसे अरामी भाषा में बात कर, ताकि सामने वाले जो लोग हैं उनको समझना है। उनने और जोर से चिल्लाकर बोला कि उनको समझ में आने दो, मैं हिब्रू में ही बोलूंगा। तब हिजकिया को यह खबर सुनाई गई। हिजकिया रोया और उसने परमेश्वर को पुकारा, और उस समय जो इजराइल के प्रॉफिट था उसका नाम था यशायाह। यशायाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और यशायाह ने हिजकिया राजा से कहा, मत डर, जो अश्शूर के राजा ने और उसके मंत्री ने मेरे विरुद्ध में बोला है, मैंने उसे सुना है। अब मैं उसको उसी के देश में लौटाऊंगा और वहां मरवाऊंगा। तब मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह ने जो एक प्रोफेटिक बात वहां पर कही, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें आप इतिहास की किताब, एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको। हिजकिया के समय की बात है ये। हिजकिया 39, दूसरा इतिहास की किताब निकाल लीजिए। 35 होना चाहिए दूसरा इतिहास। हिजकिया के राजा,
हिजकिया राजा जो था उसके समय की एक घटना है ये है 19 अध्याय, दूसरा राजा 19 अध्याय, माफ कीजिएगा, दूसरा राजा 19 अध्याय, जल्दी से निकालिए। दूसरा राजा 19 अध्याय उसके 20 पद। कम ऑन चर्च, डू फास्ट। दूसरा राजा 19 अध्याय, सेकंड किंग चैप्टर नंबर 19 वर्स 20। तब आमोस के पुत्र 19 अध्याय 20 पद से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 19 अध्याय 20 पद पढ़िए, किसी को मिलता तो पढ़िए। हाँ, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिया राजा के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सेनहरीब से के विषय में मुझसे कही, उससे क्या कर लिया है? याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आगे उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा, सियोन की कुमारी कन्या, क्या बोल रहे हैं उसको? तुझे क्या करती है? आप और मैं कमजोर नहीं है, आप और मैं सामर्थी लोग हैं। बहनों, ये एक आत्मा से परिपूर्ण और एक दुष्ट आत्मा शैतान के विरोध में बात की जा रही है। परमेश्वर कह रहा है, हे शैतान और हे दुष्ट आत्माओं, हमारे आत्मा से परिपूर्ण एक कुंवारी बहन भी तुझे ठट्टों में उड़ाती है। कम ऑन चर्च। हाँ, लिखा है उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा। सुनो, सियोन की कुमारी से पढ़ो, सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है। याद रखिए, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बहन शैतान को तुच्छ जानती और ठट्टों में उड़ाती है। कम ऑन, कम ऑन। बीमारियों को तुच्छ जानती और ठट्टों में उड़ाती है, कमजोरियों को तुच्छ जानती और ठट्टों में उड़ाती है, समस्याओं को क्या जानती है और क्या करती? हंसती है। बहनों, परमेश्वर ने आपके विषय में नहीं लिखा, सियोन की कुंवारी कन्या बीमारियों को देखकर रोती है, समस्याओं को देखकर रोती है। वो कह रहा है, जबकि आपको पता है ये मौत की कगार पर खड़े, इन्हें केवल परमेश्वर बचा सकता है। उस समय में परमेश्वर उनको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है कि तुम्हारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे संग है। तुम कमजोर नहीं, तुम सामर्थी हो, तुम पावरफुल हो। एक आत्मा से परिपूर्ण बहन, एक आत्मा से परिपूर्ण भाई मौत के सामने भी मौत को ठट्टों में उड़ाएगा, बीमारी के सामने बीमारी को ठट्टों में उड़ाएगा, और शैतान के सामने शैतान को ठट्टे में उड़ाएगा। कम ऑन। लिखा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझे कैसे जानती है? तुच्छ। शैतान को कैसे जानना है आपको? बीमारियों को, समस्याओं को। बोलो, जिन्हें हम तुच्छ जानते हैं उन्हें हम दूर करते हैं, हम उन्हें दूर कर देते हैं। सही है ना? बोलो, तुच्छ मतलब बेकार, गंदा। कोई गंदगी को पास लाएगा, और हम जिससे प्रेम करते हैं उसको पास लाते हैं। बोलो, जिससे प्रेम करते हैं उसको घर बुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। राइट? तब आपको सोचना है कि क्या आप बीमारी से प्रेम करते हैं? क्या आप समस्या से प्रेम करते हैं? क्या आप शैतान से प्रेम करते हैं? क्या आप दुष्ट आत्मा से प्रेम करते हैं? नहीं करते ना? तो फिर क्यों हम उनको अपने जीवन में बुलाते हैं? उन्हें तुच्छ जानने का और बाहर करने का। कम ऑन चर्च, उन्हें तुच्छ जानना और बाहर करना है। उनके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप बीमारी के लिए एक आंसू ना निकले आपकी आंखों से, आत्मा से परिपूर्ण होकर खड़े हो जाइए, बीमारी खुद भागेगी। कम ऑन चर्च, कमजोरी खुद भाग जाएगी, समस्या खुद भाग जाएगी। दुष्ट आत्मा के भगाने के लिए चींची चिल्लाने की जरूरत नहीं है आपको। आत्मा से भर जाए, दुष्ट आत्मा खुद निकलकर भागेगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन।
जब तक आपका आत्मिक जीवन कमजोर रहेगा, शैतान बार बार अटैक करता रहेगा। हालेलुया। बोलो, यदि तवा गरम है, मक्खियां नहीं आने वाली है। जोर से बोलो, मक्खियां आएगी क्या? बोलो, आएगी। यदि बैठी तो जान गई। यदि आप बोलो, जब एक व्यक्ति आत्मा से भरा होता है, वो आग से भरा होता है। यदि वो आग से भरा है, क्या कोई दुष्ट आत्मा आएगा? जोर से चिल्लाओ, आएगा? आपको बोला, मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। बहुत अद्भुत बात लगी जब मैं इसको रात में पढ़ा। मैं इतना आनंद से भर गया कि सियोन की कन्या तुझ पर सिर हिलाती है और तुझे तुच्छ जानती। वो इतना, आपको पता है, वो राजा इतनी ज्यादा उसके पास सेना है ना कि वो बोलेगे मिस्र में जाएंगे ना, मिस्र को सुखा देंगे हम लोग। क्या बोला उसने? हाँ, मिस्र को सुखा देंगे हम, इतने खतरनाक लोग हैं। 18 अध्याय और उसके 33 पद से, 18 से 18 अध्याय 18, यही सेम 18 अध्याय उसके 33 से। क्या और जातियों के देवता ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? वो क्या धमकी दे रहा है कि जाति जाति के लोगों ने अपने आप को नहीं बचा पाए, हम इतने खतरनाक लोग हैं। आगे, हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? हाँ, हमात अर्पाद के देवता भी कहाँ रहे? सफेद सेना और सीबा के देवता, क्या उन्होंने शिमरोन को मेरे हाथ से बचाया? हाँ, सिमरोन बच पाए मेरे हाथ से, मैं इतना खतरनाक हूँ। देश देश के क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे हम्म और इसको उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी। क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी। हालेलुया। बड़ी बचाएगा हमारे हाथ से। याद रखिए, आपको मुझको बचाने वाला आपको और मेरा परमेश्वर है। यहां पर हिजकिय्याह के विषय में लिखा है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। आप और मैं भी जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। किसी बात से डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए। प्रभु आज यही चाहता है, आत्मा से भर जाइए और आगे बढ़ जाइए। किसी बात से मत डरिए, मत घबराइए। आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा उस राजा के विषय में जाकर बोलना उसको कि सियोन की कुमारी कन्या भी ना तुझे छत्तों में उड़ाती और तुच्छ जानती है। आगे, यरूशलेम की पुत्रियां सब देवताओं में से ऐसा हाँ। कौन है जिसने अपने देश को मेरे को जिसने हाथ से बचाया हो? हाँ, 19 अध्याय उसके 21 पद से फिर से हम जाएंगे। जल्दी से 2-3 बातों को बताकर मैं सीधे आपको और आत्मा की गहराई में लेकर जाना चाहता हूं। उसके विषय में यहोवा ने ये वचन कहा, हाँ, सिय्योन की कुमारी कन्या वेरी गुड, तुझे तुच्छ जानती, ओके। छत्तों में उड़ाती, तुझे छत्तों में उड़ाती है, मुझे अमेजिंग लगा। हाँ, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। वाओ, अमेजिंग। तूने जो नामधराई और निंदा की है, हाँ, किसकी की है? हाँ, तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया, वह किसके विरुद्ध किया? इज़राइल के पवित्र के विरोध तूने किया है। हाँ, अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा हाँ, कि बहुत से रथ उत्तर में पर्वतों की चोटियों 24 मैंने तो खुदवाकर परदेश परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। हाँ, क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिन से इसकी तैयारी की थी, उन्हें अब मैंने पूरा की दिया है और तू गढ़ वाले नगर को खंडर ही खंडर 27 मैंने तेरे मैं तो तेरा बैठा रहना मैं तो तेरा बैठा रहना और कुछ करना और लौट आना जानता हूँ। हाँ। और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपकी और मेरी सारी बातों को और सारी एक्टिविटी को जानता है। वो शैतान की सारी बातों को और एक्टिविटी को जानता है। इतना महान परमेश्वर है आपका और मेरा। वो आज
पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे अंदर रहता है। इसलिए कहा कि देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। यशायाह 28 अध्याय उसके 2 पद में हम लोग 28 के 2 पद में देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। कितना बलवंत और सामर्थी पता है? जो अभी मैंने आपको पढ़वाया, जो असुर की सेना से भी नहीं डरता। यह असुर क्या है? असुरी, ये दुष्ट आत्मा और उसके साम्राज्य की बात हो रही है। हो सकता है आपके विरोध में अंधकार की पूरी सेनाएं लगी हो, अंधकार का राजा असुर स्वयं शैतान आपके विरोध में कह रहा हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बहनों? सिर हिलाना है बहनों, उसको तुच्छ जानना है बहनों, उसको ठट्टों में उड़ाना है। हालेलुया। देखो प्रभु अमरती 28 का 2, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओलों की वर्षा, वो कैसा है? ओलों की वर्षा, सब बोलो कैसा? ओलों की वर्षा। यदि ओलों की वर्षा बाहर हो रही है, मैं आपसे कहूंगा कौन लोग घर जाना चाहेंगे? कोई जाएगा ओलों की वर्षा में बाहर? हाँ, ओलों की वर्षा यदि बाहर हो रही है, ओले गिर रहे हैं बड़े बड़े बाहर, कोई जाएगा बाहर? देखो ओलों की वर्षा, हाँ, और उजाड़ने वाली आंधी, यदि उजाड़ने वाली आंधी जो सब कुछ उड़ाकर लेकर जा रही, कोई बाहर निकलेगा क्या? वेरी गुड। और बाढ़ की प्रचंड धार के समान है, और कैसी? बाढ़ की प्रचंड। अब इन दिनों बारिश का मौसम है, हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं कि बाढ़ों में लोग बेकर जा रहे हैं। कोई टिक पाता क्या बाढ़ में? मैंने बड़ी बड़ी बसों को और गाड़ियों को बाढ़ में बहता हुआ देखा। कई सारी कारें उस बाढ़ में क्या हो रही है? कोई टिक पा रहा है क्या? कोई टिक पा रहा है? जब गाड़ियां बेकर जा रही, को मनुष्य टिक सकता है क्या? प्रभु यही कहता है कि देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थ्य है, जो उजाड़ने वाली ओलों की वर्षा, उजाड़ने वाली आंधी और बाढ़ की प्रचंड धार के समान है, और वो स्वयं पवित्र आत्मा अब आपके और मेरे अंदर रहता है। कम ऑन, पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। जब आप और मैं खड़े होंगे मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी अंधकार की शक्ति वहां पर खड़ी नहीं रह पाएगी। कोई बीमारी खड़ी नहीं रह पाएगी, कोई समस्या खड़ी नहीं रह पाएगी। परमेश्वर उन सबको शीघ्रता से भूमि पर पटक देगा। हालेलुया। सबको भूमि पर पटक देगा। क्या लिखा है? बाढ़ की प्रचंड कठोरता से भूमि पर गिरा देगा, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा, क्या कर देगा? भूमि पर गिरा देगा। शैतान कठोरता से भूमि पर गिरा दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज की इस दोपहर में मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं, आपको यह बात बताने के लिए आया हूं कि आप और मैं अब आत्मा जीवन की ओर आगे बढ़े, क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण जीवन न हारने वाला जीवन है, न कमजोर होने वाला और न थकने वाला जीवन है। एक ऐसा जीवन जहां पर हर समय विजय 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 है। बाहर शायद आपको बहुत सताव और तकलीफें दिख रही हो, लेकिन अंदर से और आने वाले समय के लिए आप लोगों के और मेरे लिए विजय का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बार बार कहा कि सुनो, जब तक पवित्र आत्मा से भरे न जाओ, यरूशलेम मत छोड़ना, क्योंकि तुम अपनी ताकत से कुछ न कर पाओगे, लेकिन जो बलवंत और सामर्थ्य है, उजाड़ने वाली आंधी, बाढ़ के प्रचंड धार के समान, ओलों की वर्षा के समान, जब वो तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम एक सामर्थ्य व्यक्ति हो जाओगे। यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा सारी जगह फैल गई। और हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, जब यीशु गया, चेलों ने यीशु की बात को माना और वे लोग ठहरे रहे, और 35 के दिन पवित्र आत्मा आया। और जो एक डरा हुआ व्यक्ति था, एक कमजोर व्यक्ति था, जो यीशु का इंकार किया 3 बार और वो भाग गया, वो पतरस भी आत्मा की सामर्थ से भरकर खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। सामर्थ से भरकर वो प्रचार करने लगा और यह बात बताने लगा कि तुम भी मन फिराओ और प्रभु के पास लौट आओ। आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से
जाना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। आज चाहे हम किसी भी काम पर ठहराए गए, परमेश्वर आज के दिन आपके लिए और मेरे लिए चाहता है कि हम आत्मा से भरे जाएं। मैंने पिछले हफ्ते आपको अभिषेक के विषय में बताया था। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही अभिषेकित किया जाता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, जल्दी आत्मा है। 5 बातों के मैं आपको बताया था। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आप में सब- वो पवित्र आत्मा की सामर्थ वो और मैं बना हर हर दिन आत्मा से भरते 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 भरते। अब कमजोर जीवन बहुत हुआ। मैं मेरी वो समस्या ये हटाकर अब पवित्र आत्मा की ओर आगे बढ़े। कौन सा काम रुक रहा है आपका? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर काम आपका रोकने वाला केवल और केवल शैतान है, अंधकार की। उसके विरोध में खड़े हो जाइए, सारा काम आप। तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से हुआ है वो तुम में बना रहता है। हाँ, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हम्म, उसमें बना रहता है। हाँ, और तुमको इसका प्रयोजन नहीं हाँ, कोई तुम्हें सिखाए, हाँ। पर जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाए, सब बोलो, बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है। बोलो, जो अभिषेक है वो सब बातें सिखाएगा, प्रार्थना सिखाएगा, वचन सिखाएगा, प्रार्थना सिखाएगा, वचन सिखाएगा, सेवकाई सिखाएगा, काम करना सिखाएगा। जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको सिखाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। अब रोना धोना बंद मेरे भाई और बहन। आज से रोना धोना बंद। मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। कब होगा प्रभु, कब होगा प्रभु, कब होगा? प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ एक बात कहते थे हमेशा कि इससे पहले कि पवित्र आत्मा मुझे उभारे, मैं पवित्र आत्मा को उभारने लगता हूं। कम ऑन। जीवन के 3 भाग है, आत्मा, प्राण और शरीर। ध्यान, हमेशा हमारी चाह रहती है कि प्रभु को शरीर में बुलाते हैं। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। प्रभु शरीर में नहीं आने वाला, आना। क्यों? प्रभु आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु आइए, आप उस इंतजार में मत रहिए, आप खुद आत्मा में आ जाइए, प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। जब आप और मैं आत्मा में चलेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा से भरे जाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आत्मिक आंखें भी खुल जाएगी और कान भी खुल जाएंगे, देखने भी लगोगे और सुनने भी लगोगे। कम ऑन चर्च। अभी हमको सही मार्गदर्शन नहीं होता। अरे प्रभु कौन सी जॉब करें, अरे प्रभु कौन सा बिजनेस करें, अरे प्रभु हम क्या करें, कहां से अवकाई करें, कहां से लोग आएंगे, अरे प्रभु इतना ही, अरे अब तो फाइनेंस का स्ट्रगल और बच्चों की फीस, अरे खाने का राशन। ये सारी चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, वो आपको रास्ता बताएगा। क्योंकि यही चिंताएं पता मिस्र के लोगों को भी थी। अरे प्रभु अब रास्ता कैसे बनेगा? प्रभु ने बोला लाल समुद्र से भी रास्ता बन जाएगा। हालेलुया। वो हमारे लाल समुद्र से भी रास्ता बनाएगा, पर कब?
जब आप और मैं आत्मा में चलने की आदत डालेंगे। अब बहुत हो गया हारा हुआ जीवन, अब हम लोग नए लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछली बार मैंने आप लोगों को अभिषेक के बारे में सिखाया था कि हम में से हर एक का प्रभु ने अभिषेक किया है। किन बातों के लिए? उन 5 बातों के लिए अभिषेक किया है। लेकिन अभिषेक में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। जब एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ता है वो अभिषेक में बढ़ता है। अभिषेक क्या है? परमेश्वर की सामर्थ को उपयोग करने का अधिकार, इस्तेमाल करने का। इस पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल कैसे करोगे? वो अभिषेक के द्वारा। जब आप उस अभिषेक में बने रहोगे तो आपका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। एक और वचन पढ़ेंगे फिर फिनिश करूंगा। आज मैं चाहता हूं सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 5:18। थैंक यू होली स्पिरिट। डॉक्टर से मतवाले ना बनो, किससे मतवाले मत बनो? डॉक्टर से मतवाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सब लोग पढ़ें, जिनके पास जिनको मिल चुका है सब पढ़िए। आत्मा से क्या हो जाओ? आत्मा से क्या हो जाओ? हाँ, लिखा है एंड डू नॉट गेट ड्रंक विथ वाइन फॉर दैट इज डिसेप्शन बट फिल विद द होली स्पिरिट। प्रियो, आप एक नशे करने वाले व्यक्ति के पास जाइएगा, उसको पूरे समय केवल नशा दिखाई देता है। बहुत सारी बहनें और भाई की कंप्लेंट्स मेरे पास में अक्सर आती है कि उनके जो बच्चे हैं या उनका जो पति है या उनका जो भाई है, सुबह उठते नशा करने चले जाता है, दोपहर में भी नशा, बोले हर समय नशे में रहता है। कैसा रहता है? एक नशा करने वाले व्यक्ति के पास जाइए, उसके अंदर हर समय ख्याल होता है कि कैसे नशा करने जाना है। आप किसी अनजान शहर में, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। बारात में गए हैं आप लोग? आधे लोग नहीं गए। हालेलुया। बारात में गए, शादी बारात में गए ना? अब आप शादी बारात में गए हो, यदि आप अनजाने शहर के अंदर में गए हो या किसी गांव में गए हो, तो आपको किराने की दुकान ढूंढने में, आपको मेडिकल की दुकान ढूंढने में आपको समस्या होगी। लेकिन नशेला व्यक्ति होता ना, शराबी, वो दारू की दुकान ढूंढ लेगा और पी के भी आ जाएगा। और जब पी के आएगा ना तो पड़ोस वाला खुश भी लेगा, कहां है, कहां से ली, तो वो अपने वायरस दूसरे को फैला देगा। और आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद में सारे लोग झूम के उधर बैंड पे नाच रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ मिली, सबसे पहले वो दूसरे अलग बता देगा, उधर मिल रही है, उधर की साइड में मैंने ढूंढ ली। तो 2-4 जो खोजबीन करने वाले वो ये करने जाते हैं कि ढूंढ दो। सबसे पहले तो उतर के सबसे पहले क्या करना है? ढूंढना कि कहां है अड्डा। उसके बाद तो बैंड पे डांस होगा। पौलुस कह रहा है दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक बड़ा समझने वाली बात है कि प्रभु का वचन या पौलुस क्यों उसको एक नशे करने वाले व्यक्ति से कंपेयर कर रहा है। क्योंकि एक नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर में बार बार वही चलता रहता है, मैं कब जाकर नशा करूंगा, कब जाकर नशा करूंगा। रात को नशा करेगा तो सुबह उठकर पूछेगा कब नशा करूंगा, दोपहर को नशा। उसके अंदर बार बार नशा करने की चाह होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैसी ही चाह आपके और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। हमारे घर में ज्यादा टेंशन होती है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, ज्यादा बिजी होते हैं तो प्रार्थना बंद करना कर देते हैं। लेकिन एक नशे वाले व्यक्ति से पूछो, वो दुनिया भर का काम छोड़ के नशा करने चले जाता है। समझ में आ रहा है? सोचो वो अपना नशा करने का समय कितना मैनेज करता है। आध घंटे की जॉब भी करेगा, आते समय 1 घंटा नशा वशा कर करके शाम को घर आ जाएगा। और हम बोलते हैं अरे हमारे पास तो समय ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? सोचो वो अपना टाइम मैनेज करके अपना नशा करता है, और अब हम अपना टाइम मैनेज करके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की चाह नहीं करते। पौलुस कितने अच्छे से उसको कंपेयर कर रहा है। मैं कुछ बातें उसमें कंपेयर करके आपको बताऊंगा और आज के विषय को हम समाप्त करेंगे। तैयार रहेगा जब हम बहुत सारी प्रार्थना करने वाले और प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, जहां जिस बात का प्रचार होता है वहां वो होता है। यदि आज पवित्र आत्मा का प्रचार हो रहा है
अभिषेक का प्रचार हो रहा है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। बस आज आपको रिसीव करना है। क्या करना है? क्या करना है? प्रभु बार बार एक ही बात कह रहा है, अब कोई कमजोर घर ना चला जाए। यदि आज आपको लगता है मैं कमजोर हूं, वो कमजोर घर नहीं जाना चाहिए। आज सामर्थ्य होकर जाना चाहिए। जब आज आप घर पर जाओ और कदम रखो ना, पूरा अंधकार का शासन हिल जाना चाहिए। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। घर के सब विरोधी रहते हैं तो आदमी बिल्कुल जिम विम करके बॉडी शॉडी बना के जाता है। आ जाओ आप कितने लोग हो, विशुम, हालेलुया। अब आज आप अपनी आत्मा की बॉडी बनाकर जाना है। क्या करना है? हालेलुया। आत्मा की बॉडी बनाकर जाओ, शैतान की धुलाई करो यीशु के नाम में। बाइबल बताती है, दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये नए नियम का वचन है प्रियो, और हर एक विश्वासी के लिए है। हर एक विश्वासी के लिए प्रभु की इच्छा है कि वो आत्मा से प्रतिदिन 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 हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन कंटिन्यूसली हर दिन आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। आज परमेश्वर के लिए आप मुझसे इच्छा पूछोगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की दूसरी बड़ी इच्छा सुन लीजिए, आत्मा से परिपूर्ण होना आप लोगों के लिए। सो बोले परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा और बड़ी इच्छा कि आप और मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। जोर से बोलो, क्या बोले? ये सबसे बड़ी इच्छा है। और इसका दूसरी, अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है ना, चल रहा है। एक ही मेडल मिलता है, गोल्ड सिल्वर भी मिलता है ना। हाँ, मिलता है कि नहीं मिलता है ना? बोले बोले गोल्ड वाली इच्छा कौन सी प्रभु की पता है? कि यीशु को लोग उद्धारकर्ता के रूप में। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है, सेकंड नंबर का जो मेडल होता है वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। पिछले रिकॉर्ड्स देखे मैंने, मीराबाई चानू है, बजरंग पुनिया है, जो लोग मेडल जीते हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हमारा देश बढ़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं रोहित मसीह मिनिस्ट्री की ओर से उन सब लोगों को बधाइयां देता हूं मैं कि वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हालेलुया। मैं देख रहा था कि ये कोई तुरंत घर से उठकर चाय नाश्ता करके वहां नहीं पहुंच गए, है ना? कि वो एंट्री हो रही थी तो बोले चलो चलो अपने नाम लिखवा दिया। उनके वेट लिफ्टिंग के मैं देख रहा था, एक तो उसमें से 2-3 तो क्रिश्चियंस फैमिली से हैं। अपनी वो लड़का 67 केजी का था, उसने 130 किलो उठाया। मैंने बोला अपने वजन से दुगना उसने उठा लिया वेट लिफ्टिंग में, तब तो इनाम मिला है। मैं भी कहना चाहता हूं अपनी कैपेसिटी से दुगना आपको आत्मा से भरना है। कम ऑन, हालेलुया। बोलो यदि मेरी कैपेसिटी, आपको पता है एक नशा करने वाला अपनी कैपेसिटी कैसे करता है? मैंने बहुत किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे को नॉलेज है। आपको पता है कि आप एक बोतल में आपका काम फिनिश हो जाएगा ना, और नशेला ना दो बोतल लेगा कि उसका पूरा काम फिनिश हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? यदि आपको लगता है ना मेरे आधा घंटे प्रार्थना में मैं खत्म हो जाता हूं, 1 घंटा प्रार्थना करना शुरू करना है। कम ऑन। यदि आपको लगता है अरे आधा घंटा ही मैं वचन पढ़ सकती हूं, बोलो कैपेसिटी बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो। बोलो जब एक बीमार व्यक्ति होता है, जोर से बोलो, बीमार होता है एक व्यक्ति, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इलाज लिखता है। जोर से बोलो, इलाज लिखता है। अरे बोलो ना, उसको देता है, 5 दिन के बाद वापिस आना। उसने इलाज लिया, थोड़ा फायदा हुआ, फायदा नहीं हुआ, 5 दिन के बाद वो जाता है, क्या बोलता है? बोलो ना, क्या बोलता है? इलाज फायदा। डॉक्टर क्या करता है पता है? उसको घर भेज देता है। ऐसा होता है क्या? बोलो डोज बढ़ा देता है। बोलो डोज बढ़ाता है। अरे कमॉन बोलो ना, क्या करता है? आपकी 5 मिनट की प्रार्थना से घर में परिवर्तन नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा नहीं भाग रहा है, डोज बढ़ा दो। पड़ोसी को बोलो डोज बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो। बोलो शराबी को एक बोतल में जब कुछ नहीं होता, वो अपना डोज बढ़ाता है। सही बोल रहा हूं ना? पक्का ना? आवाज ही नहीं आ रही है। वो क्या करता है? डोज। जब
आपको लगे कि आपकी 10 मिनट की प्रार्थना से, 15 मिनट की प्रार्थना से, आधे घंटे की प्रार्थना से घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कलीसिया बढ़ रही, ना लोग बढ़ रहे, ना परिवर्तन आ रहा है, जीवन बढ़ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपना डोज बढ़ाइए। हालेलुया। बोला डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। नए नियम में दूसरा जो मेडल दिया जाता है, बोलो दूसरा जो मेडल दिया जाता है वो है आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। बोलो दूसरा मेडल क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिल विद द होली स्पिरिट, फिल विद द होली स्पिरिट, कंटिन्यूसली फिल विद द होली स्पिरिट। बोलो लगातार आत्मा से भरते चले जाएं, और भरते चले जाएं, और भरते चले जाएं। प्रार्थना करते रहें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। और आत्मा से भरने का एक सबसे अद्भुत वरदान जो है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है और अपनी आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया। तो आप यदि आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको आत्मिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, न शैतान की सेना। हालेलुया। कोई भी आपको उन्नति करने से नहीं रोक सकता। आज से घर में रोना धोना बंद। बोले रोना धोना बंद, कंप्लेनिंग बंद। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा? अब बोलो मुझे ही कुछ करना है। मुझे क्या करना है? जोर से बोलो, और थोड़ा लगाओ ताकत। आत्मा से भरना, और बोलो कितना? बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे। वो जब बहने लगेगा परिवार के लोगों पास पहुंचेगा, वहां से बहता हुआ पड़ोसियों तक पहुंचेगा, और बहता हुआ अन्य लोगों तक, और बहने दो। आपके अंदर से पवित्र आत्मा का सामर्थ बहता हुआ सब लोगों के पास पहुंच जाएगा। बोलो यही तो हुआ यीशु के साथ। बोलो यही हुआ कि आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो जब गलील को लौटा तो वो बहने लगा। वो क्या करने लगा? और वो जब बहने लगा मेरे भाई और बहनों, तो याद रखिए कि उसकी चर्चा सारे देश में फैल गई, सारे देश में फैल गई, सारे देश में फैल गई। हालेलुया। कम ऑन अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। उसकी चर्चा क्या हो गई? उसकी चर्चा